ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਭਾਤੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਗੀਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਟ। ਛੱਡ ਖੜੋ ਦੇਖਨੈ ਮਾਹੀ, ਚਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਗੀਤ। ਹੱਥ ਮਰੂੜੈ ਤਨ ਕਪੈ, ਸਿਆਹੂ ਆਸੀਤ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੀਤ। ਸੇ ਭਾਤੋਂ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ। ਸੇ ਭਾਤੋਂ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਬਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੌਸਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਪਰ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੜਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਵਰਤਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਕੱਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਦਾ?
क्योंकि पहली कोल उन्हें वेख लिया भी ये सुख नहीं मिलया, फिर दूजी पकड़ी। जिमें आप छोटी जी विचार कर लीए, मेरे को घर है, शायद छोटा तो सुख नहीं, बड़ा ले लिया, पर बड़े तो भी फिर प्रतीत होया नहीं ये भी सुख नहीं, फिर और बड़ा ले लिया, फिर उहदे च भालिया भी ये सुख होएगा नहीं, फिर गड्डी वड्डी ले ली, फिर उदों वड्डी ले ली, फिर जिमें जिमें भटकना बनती गई पदार्थों की, उवें उवें एक नूं छड्ड के दूजे दे विचों सुख भालदा मनुख। हुंदा औखा है, वो सुख मिलता कोई नहीं, हुंदा औखा है। दिन रात अपना जीवन सगों साह लेना औखा हो जाता है, इतनी हुमस हो जाती है जीवन में। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बड़ी प्यारी बात समझाई है। वो समझाई भी बंदिया अपने अंदर झात मार के देख, जिमें भादों के महीने च एक भरम पिया रहिंदा है, इसे तरह साड़ी सारी जिंदगी च भरम पिया रहिंदा भी इन्हां चीज़ों चों मैनूं सुख मिल जाना। याद रखियो, गुरु दोवें चीज़ां बराबर रखते हैं, एक पदार्थ एक परमार्थ। गुरु कहते ने तेरे कोल पदार्थ भी होवन पर सुख लैण वास्ते परमार्थ भी होवे, मालिक दी साईं दी इबादत भी होवे, साईं दा शुक्र भी होवे। सुख नाही रे हर भगत बिना, रब्बी इबादत तो बिना सुख नहीं मिल सकता। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। हुण इत्थे किसी पदार्थ का ना नहीं है भी जे तू सदीवी सुख चाहुंदा तो आप पदार्थ प्राप्त कर लै फिर तेन सुख मिलेगा। किसी घर का, किसी धियां पुत्तां दा, किसी कारोबार का, किसी खाण वाले पदार्थ का जिक्र नहीं है, शरण राम की ले का जिक्र है। असी फिर भी परमार्थ नहीं समझ पाते। खोजत खोजत तत् विचारियो, दास गोबिंद परायण, अबनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माही मिटावो। मालिक के चरणों में आके अंदरों संतुष्टि बना के, अंदर एक पदार्थों तो ऊंची बिरती करके मालिक के चरणों में जुड़ के फिर ही सुख मिल सकता है। बस जेडे गुरु चरणों में आ गए उन्होंने भरम नहीं रह गया, वो भरम चो निकल गए। भरम हुंदा की है? भरम उन्होंने कहते ने माधवे क्या कहिए, भ्रम ऐसा जैसा मानिए खोए ना तैसा। हर बारी अंदाजा ला लेने बदल चढ़ के आया, मीह पेगा, ठंड होएगी, सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं। इस तरह साडे जीवन की कहानी, आ पदार्थ में प्राप्त कर लिया, आ पदवी प्राप्त कर ली, इतनी माया प्राप्त कर ली, हुण मैनूं सुख मिलेगा। हजूर कहते बड़े बड़े जो ढीसा लोग तिनको व्यापै चिंता रोग, सगों होर दुखी हो गया। जे सुख चाहना है फिर सच्चे की गोद विच है, मालिक की गोद विच है, सच्चे की इबादत विच है। आओ शब्द नाल जुड़िए। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने इस महीने में जिक्र किया एक हेत वो है जिहड़ा संसार दा है। हेत मतलब हित, हित मतलब प्यार प्रेम। एक हेत वो है जिहड़ा सच्चे साईं दा, रब दा, परमेश्वर दा, गुरु दा है। उन्होंने किसी नाम नाल भी याद कर लो। हजूर कृपा करते ने भादोए भरम भुलाणियां। एक बेनती होर करा भी, अक्सर सतगुरु जी ने जेड़े महीनों के प्रचलित ना ने वो नहीं वरते, बल्कि अपने वालों नवे ना दिते ने। जिमें आम भाषा विच, आम बोली विच भादरों या भादों शब्द कहा जाता है, पर गुरुदेव ने इसका नाम रखा भादोई। भादोई का मतलब दो प्यार। दो प्यार ये भरम है, प्यार एक नाल ही हो सकता है। ये दो प्यार वाले जिहड़े भरम ने उहदे विच भुल के जीव किवें खुआर हुंदा है, सारे महीने च उहदा जिक्र है। भादोए भरम भुलाणियां, जिहड़ियां जीव इस्त्रियां भरम विच पै के भुल गईयां, उन्होंने अपने मालिक नालों प्यार तोड़ लिया।
मैं एक बारी फिर बेनती करनी चाहुंदा, आपां कई बारी इस गल का जिक्र किया है। गुरबाणी विच सूही राग विच कुचज्जी ते सुचज्जी ये दो पवित्र बाणियां ने। कुचज्जी की करती है? कुचज्जी पदार्थ नाल स्नेह ला लैंदी है, मालिक नूं भुल जाती है, उसकी परवाह नहीं करती। सुचज्जी की है? वो कहती मालिक जी जे तू मेरे नाल है तो सब कुछ मेरे नाल है, पदार्थां का सुख भी तेरे नाल है। दो ही पंक्तियां कह दियां। कुचज्जी की की निशानी है? शिव जी आखते ने, कहते उन्हें अपने जीवन के अंदर सोना रूपा रंगला मोती ते मानक जियो, छे वस्तु शह दित्तियां, तिन स्यो लाया चित जियो, मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो, हाँ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो, मालिक दे कोल नहीं बैठी। सुचज्जी की है? जां तू तां मैं सब को, तू साहिब मेरी रास जियो, तू अंतर हो सुख बसा, तू अंदर बसना तो मैनू सुख मिलता है। गुरमत ने किते ये नहीं किया भी पदार्थों को त्याग जाइए, पदार्थों विच रहिंदियां शुक्र साईं दा कर लईए बस। भादों भरम भुलाणियां दूजे लगा खेत, जिन्हां ने दूजे नाल खेत ला लिया मालिक नूं छड्ड दिता। लख शिंगार बनाया कार्ज नहीं केत, इनू भी समझ लेना। हर मनुख के अंदर हौमे का अंश है। कोई बहुत विरला पंजा गुरु की कृपा वाला ये तो बचता है। हुण हौमे दे विचों ये भावना है भई मैं धर्मी बना ना, मैं धर्मी दिसां, ते दिसण लई शिंगार करना पैंदा, बनन लई किरदार बनाउणा पैंदा। मैं बड़ी बारी तुहाडे चरणां विच बेनती कीती है, शिंगार अते किरदार दो चीज़ां ने। किरदार अंदर होण करके, किरदार तो जीवन का करैक्टर है, जीवन का चाल चलन है, इनू बाहर नहीं दिखाया जा सकता। किरदार का प्रगटावा शिंगार राही होता है। कोई स्त्री अपने पति दे कितने को प्यार की पात्र है, ये उसके शिंगार तो पता लग जाता है, ये उसके शिंगार तो प्रगट हो जाता है। दुनिया में किधरे भी झत मार लो, किरदार ते शिंगार दो बराबर चलते हैं। एक डॉक्टर बनया, उन्हें लंबी मेहनत की, किरदार बनया, उसका किरदार बन गया, एक नूं वर्दी मिली, ये शिंगार है। एक पुलिस ऑफिसर बनया, उन्हें लंबा समय पढ़ाई की, किरदार बनाया, उन्हें एक वर्दी मिली, एक शिंगार मिलिया। पर वो शिंगार उहदे किरदार का प्रगटावा है भी ये पुलिस ऑफिसर है। हुण जे कोई किरदार तो उह जिहा ना बनावे तो कल्ली पुलिस ऑफिसर की वर्दी पा ले, हैरानी की गल है। जिहड़ी वर्दी उन्होंने सलामा करवाउंदी है, उही वर्दी उन्होंने दोषी भी बना सकती है। इसे तरह धर्म की दुनिया च है, हर धर्म के कुछ निश्चित चिन्ह ने, जोगी के निश्चित चिन्ह ने, सनातनी धर्म विच चिन्ह ने, मत्था टिक्का, तेड़ धोती का खाई। पर किरदार की है? हथ छुरी जगत कसाई। इसे तरह सतगुरु जी ने जोगी नूं आख्या सी, इसे तरह मुसलमान नूं आख्या सी भलिया। इसे तरह सिख की कहानी है। जे सिख भी ये भुलेखे विच रवे भई मैं शायद बाहरले किसी शिंगार दे नाल मालिक दे घर कबूल हो जाऊंगा, नहीं, किरदार नूं बनाउण लग्गिया 10 पातशाहियां लगियां ने, 10वें जामे विच जाके इहनूं शिंगार दिता है। किरदार बनाउण लई बहुत वक्त लगता है, वर्दी पाउण लई वक्त नहीं लगता, बहुत थोड़ा जिहा वक्त लगता है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, कहंदे जिहड़े भादों के भरम दे विच पै के भुल्ले हुए ने, उन्होंने हेठ तो दूजे नाल लाया होया, पर शिंगार इहो जिहा प्रगट करते ने भी साडा रब नाल प्यार है,
ਉਹ ਕਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਸਤਰ ਵਿਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਦਿ ਕੋ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਲੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਭੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਉਹਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਚੁਕਵਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਸੁਦੱਖਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਅੱਜ ਲੈਣੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੱਥ ਪੱਥ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗੀਆਂ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਬੰਨਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ। ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ,
जब पहला कंत मनाए, छेजे कंत ना आवे, इवें बिरथा जाए। किते ना होवे कंत आवे ही ना, तू शिंगारी बैठी रहे शिंगार दे मान विच भई मैं ते बहुत शिंगारी हुई है, किते हुई ना हंकार रह जाए। गुरु चरणों विच सखी काजल हार तंबोर सबे किछ साजिया, 16 किए शिंगार के अंजन पाजिया। जेकर आवे कंत तां सब किछ पाइए, हर हाँ कंते बाज शिंगार बिरथा सब जाइए। बाणी पढ़ ले सिखा, बाणी इस तरह पढ़ते नूं गुरु मिल जाए। ककार पावे सिखा, बारी सरूप इहो जिहा बना, लोग वेखण इहदे च गुरु गोबिंद सिंह वसदा है। इहो जिहा जीवन असी 100 वारी हथ धो के भी पवित्र न कर सके। भगत पूर्ण सिंह वर्गिया ने लोगों की गंदगी चुक के हथ पवित्र कर ले, उहदे हथ एडे पवित्र हो गए साईं चुमदा होएगा। तेरा एडा वधिया जीवन, तेरी एडी साफ अख, तू नौजवान धियां बच्चियां दे कपड़े बदल देवें, तेरे मन च फुरना तक ना आवे विकारां दा। प्यार वालियों, मैं बार बार बेनती करा, गुरु अगे जरूर अरदास करिया करिए, सतगुरु जिथे मैनू बहुत कुछ संसारी पदार्थ दिते ने, उत्थे मैनू किरदार भी बख्श, उत्थे मैनू किरदार बख्श। मैं एक चंगा इंसान होके इस धरती धर्मशाला में विचर सका। हजूर जी कृपा करते ने, लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। वो किसी कम नहीं होना, स्नेह है नहीं। जित दिन दे बिनसी, तित वेले कैसन प्रेत। जेड़ा दूजे हेत लाया ना, जदों तेरी देही बिनसन लगनी है, इन्हां लोगों ने तेनू एक नवा नां देना है। देखो, एक नाम मापे रखते ने, एक ना कई बारी किते वजों पै जाता भी फलाना बंदा डॉक्टर है, फलाना बंदा ठेकेदार है, फलाना बंदा वकील है, किते करके भी ना पै जाता। चोर है, डाकू है, कोई भी ना ले लो। सब कहते जिहड़ा सारी जिंदगी तेनू नाम नहीं ना मिलिया, वो तेरे प्यार करने वाले ने तेन देना है। वो की, जित दिन देखे बिनसी, तित वेले कैसन प्रीत। पकड़ चलायन दूत, जब किसे न देनी भेत। जेड़े दूतां दी पकड़ विच आके अपना जीवन गुजार रहे हैं ना, विकारां दे विच, ये भेत बाहर किसे नूं नहीं मिलता। निक्का जिहा दृष्टांत दे दियां, फिर गल अगे तोरांगे। इनू बड़ी तवज्जो दे के बरीकी ना समझना। मन लो मैं इकट्ठा कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भावें संगत में बैठा है, देखने में यूँ लगता भी आप गुरु को गुरु का संग कर रहे हैं, पर भुलेखा है। जे गुरु को बैठ के भी कथा करदियां भी मेरी सोच विच काम है ना, जिन्ने श्वास मेरी काम की याद विच निकले, वो मैं संगत काम की की है, गुरु की नहीं की। संगत में बैठा कथा करने, कोई इहो जिहा विचार आ गया जिहदे नाल मेरी नहीं नेड़ता बनती, मैं अपने विचारां नूं मोड़ दे दिता, ते मोड़ दे के मैं उन्होंने निशाना बना के कथा करन लग पिया। सच करके जानियो, ये संगत ईर्खा की संगत है, गुरु की नहीं है। मैं अंदरों किहदे ख्याल रख के जीवन गुजार रहा। इस तरह मैं जदों जमा की पकड़ में होना, विकारां की पकड़ में होना, बाहर तक किसी को कुछ भी पता नहीं लगता मेरे अंदर की चल रही। पकड़ चलायन दूत, जब किसे न देनी भेंट। छड्ड खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा गेट। जदों मेरी अंदरली मनुखता लुटी जा रही है, तो इन्हां मात पिता भैन भरावां सके संबंधियां चो जनन पिता लोक सुत बनता,
कोई ना किसकी धरिया, कोई किसी का सहारा नहीं। ये तो एक खिन मात्र में छड़ बैठते ने जिन्होंने मना तू खेत लाई बैठा, जिन्होंने तू सनी पाई बैठा। हथ मरोड़े तन कपे श्यामू हुआ सेठ। इन्हां विकारां दे अधीन कमाए हुए कर्मां दे कारण हथ मरोड़े, बहुत पछताउंदा मैं की कर बैठा। तन कपे, तन बार बार कल्पदा है। श्याहो हुआ सेठ, श्या मतलब काला, सेठ मतलब चिट्टा। कदे काला हुंदा है रंग, कदे चिट्टा हुंदा है रंग, भाव रंग बदलते हैं। पछतावे विच कल्पदा है, मैनूं जो करना चाहिए सी मैं क्यों नहीं किया। एक बेनती होर करा, बड़ी तवज्जो दे के समझियो। भरम भावें किड्डा ही सोहना लगदा होवे, इहदी हकीकत यह ने एक ना एक दिन टुट जाना है। भरम कदे भी साबित नहीं रहिंदा, भरम अज तक कदे भी साबित नहीं रहिंदा, भरम हमेशा टुटदा है। ये गल वखरी भी हो, मैनूं कितना प्यारा लगता है, पर उन्हें टुट जाना एक ना एक दिन। हथ मरोड़े तन कपै श्याम हुआ सेठ, जिहा बीजे सो रुने। कर्म सुंदड़ा खेत, कहते किसी को की इतराज करना है, तेरा ही बीजिया होया तेरे सामने है। ये तो तेरा ही खेत है, तेरा ही पाया हुआ बीज है, तेरे ही कर्म कमाए हुए ने। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। जेड़े मालिक की शरण विच आ गए, मालिक उन्होंने बड़ी पैज रखता है। एक बेनती करा, जे किरदार नहीं भी बन सकिया वह जा मालिक के दर ते आके भी, ते मालिक का बना लियो वह जा जिहदा किरदार होवे। तुसी कदे देखियो कोई गां मੱਝ भी है ना, बंदा डंडा मारन लग्या देखदा है, मालिक कौन पिछे। एक कुकर भी, कुत्ते नूं भी बंदा डंडा मारन लग्या वेखदा ना, मालिक इहदे नाल है। सब कहते तेरे को कुछ भी नहीं हुंदा, इन्ना ते कर ले। नानक प्रभ शरणागति, ओदी शरण विच ही आ जा, वो सोचेगा ये मेरा है, ते फिर तेनों डुबण नहीं देवेगा। चरण बोहित प्रभ देत, बोहित का अर्थ हुंदा बेड़ा जहाज। वो तेनों अपने उपदेश का बेड़ा दे देगा जिहदे विच डुबदा नहीं। से भादोए नरक ना पाइए, गुर रखण वाला हेठ। से भादोए नरक ना पाइए, ये ना सोचो भी जिहड़ा भादो च मर गया वो नरक नहीं पैंदा, ये ना सोचो, ये नहीं इहदा अर्थ। से भादोए नरक ना पाइए, गुर रखण वाला हेठ। जिन्हां ने हेठ गुरु नाल ला लिया, सने गुरु नाल ला लिया, गुरु के सने विच खूबी है, वो मनुख नूं डुबण नहीं देंदा, जीवन की बेड़ी नूं पार कर देंदा है। आओ प्यार वालिओ, गुरु चरणों नाल जुड़ के एक झूठे हेठ नूं छड्ड दईए, सच्चा गुरु का हेठ पाल लईए, फिर मालिक दीआं रहमतां दे असीं पात्र बन जांगे। भुल्ला ना चितारदे होए प्यार नाल आखो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।